name is IR. So what do we understand by Five Eyes? So Five Eyes network of five countries, collaboration of 5 countries, US, and the countries to remember. Rest 3 countries are where there is the rule of the Queen: Australia, New Zealand, and Canada. US, UK, Australia, New Zealand, and Canada. These are the 5 countries that are collaborating together to respond to the threats that are caused by New Zealand, North Korea and China. Maybe in future, Japan may also become part of this, and it will act as the 6th eye. Okay, it will act as the 6 eyes. This is 5 eyes. Now, Singapore Convention on Mediation. Mediation was held. Convention, it recently came into force. What it Convention on International Settlement of Agreements Resulting in Mediation. Okay, it is. So Singapore Convention is not the part of the Singapore government. It is, oh sorry, आप समझ नहीं पा Singapore, ठीक है, आप समझ पा रहे हो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं. So we are talking about Singapore, and Singapore में एक मीटिंग हुई थी, convention, and that is why the UN meeting named as the Singapore Convention. Okay, they named it as the Singapore Convention. So the confusion might that whether ये ढूंढ रहे हैं पीछे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लास्ट से पढ़ा रहे हैं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, लास्ट के टॉपिक से उल्टा चल रहे हैं हम. क्योंकि जनरली क्या होता है, लास्ट के टॉपिक आपको की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है लास्ट तक आते आते, तो फिर जल्दबाजी में चलते हैं, इसलिए हम उल्टा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, so it is principal organ. What are the principal organs of the UN? What are the principal organs of the UN? Security Council. Very good. What else? The General Assembly. चलिए नंबर नाम नहीं पता. 6. Very good. So there are 6. Okay, these are सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत. अब नहीं हो रहा होगा. नहीं हो रहा है सर, थोड़ा हो रहा है. अभी भी हो रहा है. अब ब्रेक हो रहा है अभी, ठीक है. सर वॉइस ठीक है, वीडियो नहीं चल रही. वीडियो नहीं चल रही है, हम हिले नहीं. अब चल रही है सर. थम थम के हिल रहे हो आप. हाँ जी, अब ठीक है. अब ठीक है. वेरी गुड. चलिए, so it is the part of the United Nations. Singapore Convention, international settlements of disputes के लिए. There are various disputes: arbitration, mediation, conciliation. Remember, there are various ways. So this is for mediation. ठीक है, this is for mediation. India is a part of this convention. India is a part of this convention. Okay, the main thing we need to understand that it is for mediation of commercial disputes. Second thing, it is part of the UN, and third is India is a member of it. Okay, very good. Now, are you aware of the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership? Comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership. Earlier it was called as Trans-Pacific Partnership only. ठीक है, Trans-Pacific means Pacific के इधर और उधर, Pacific के इधर और उधर. तो USA
started it, then USA came out of it. So सबसे मेन चीज याद रखनी है, the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership, you not UK applied to become a member of it. UK has applied to become a member of it. USA is not, and UK has applied to become is not a member because it's a trans-Pacific country. India is not a trans-Pacific country. Okay. Very good. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो. आप लोग के दिमाग में ख्याल नहीं है यूके कौन सा ट्रांस-पैसिफिक है? यूके कौन सा ट्रांस-पैसिफिक है ना? सर ऑस्ट्रेलिया तो कॉमनवेल्थ का पार्ट है ना? कॉमनवेल्थ है लेकिन डोमिनियन स्टेटस है, ऐसे तो सॉवरन, मतलब सॉवरन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दे आर देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. देखिए ये जो रीजन है ना, यहाँ पर यूके के बहुत सारे आइलैंड्स हैं. देयर आर सो मेनी आइलैंड्स दैट स्टिल बिलोंग्स टू यूके. ठीक है, तो इसीलिए वी कैन हैव देयर सॉवरेनिटी. नाउ these are the countries which are part of the comprehensive progressive trans-Pacific partnership. किस लिए है? It is a free trade bloc. It is a free trade bloc. It is not for any other thing. It is a free trade bloc. Important features हैं. It is providing market access in trade in goods and services, investment, labor mobility, and government procurement. Labor mobility and government procurement. It also covers the protection of the environment and labor rights. It also covers the protection of environment and labor rights. ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली. ये चार, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एशियान के सारे मेंबर्स नहीं है इसके पार्ट. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ऑल द मेंबर्स ऑफ एशियन आर नॉट मेंबर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप. ठीक है, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप. फिर इसमें और कौन कौन है? सिंगापुर, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम. तो एशिया से सिर्फ 4 मेंबर्स एंड जापान. साउथ कोरिया नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखिए. चाइना तो है ही नहीं, चाइना के तो अगेंस्ट ही बनाया गया है पूरा, लेकिन साउथ कोरिया भी नहीं है इसमें. ओके, और यूएसए है कि नहीं? नहीं है. यूएसए ने बनाया और यूएसए ही नहीं है. ठीक है, ये सबसे मेन चीज याद रखनी है. कोई दिक्कत तो नहीं? देखो आज हमारी थोड़ी एनर्जी हो सकता है लो हो, हमने कल लगवाई वैक्सीन, तो वो वैक्सीन लेवल जो फीवर वगैरह आता है वो आ रहा है, लेकिन आप लोगों का पेपर नजदीक है. मॉर्निंग वाली क्लास तो हम लोगों ने पोस्टपोन करी थी, लेकिन आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, तो आप लोगों के साथ जब तक जान है तब तक पढ़ा देंगे. ठीक है, जब तक आवाज निकलेगी. ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया. जब हम लोगों के पेपर, आप लोग पेपर नजदीक आते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत पढ़ा के ना गला बैठ जाता है. तो हमने ऐसे भी पढ़ाया है कि मतलब बिल्कुल गले से आवाज नहीं निकल रही है, और फिर भी मतलब बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ा रहे हैं कि कोई सवाल पूछना मत. ठीक है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो भी आंसर है बोर्ड पे लिख के दे दो. क्योंकि एग्जाम टाइम में चाहे हमारी पढ़ाई हो ना हो, क्लास हो जाती तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है. हमें ना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा और कवर किया, बस और कुछ नहीं है. और क्लास ऑफ होती है, ऐसा लगता है आज हमारी पढ़ाई रुक गई, हमारे जो है बहुत बड़ा हर्डल ऑब्स्टेकल आ गया आज हमारी प्रिपरेशन में. ठीक है, दिस इज साइकोलॉजी. ठीक है, जरूरी चीज ये है साइकिल. और उस दिन हम ना एक्चुअली क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है. अगर हम आज क्लास बंद कर देते करंट वाली, गारंटीड आप लोग छेड़ते नहीं कुछ भी. ये 2 घंटे आप लोग किताब छूते नहीं. आपको ऐसा लगता है सर छूते सर, कल भी छुई थी. कल भी छुई थी ना, आज नहीं छूते. कल तो पता था ना छुट्टी है. क्लास का जो 2 घंटे वो बिल्कुल वेकेशन टाइम लगता. ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया. इंडिया और यूके का वर्चुअल समिट हुआ था. ठीक है, वर्चुअल समिट कहाँ हुआ था? where did it take place? तो वर्चुअल है. ठीक है, तो ये कोई नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था, वर्चुअल है. आज का सबसे बढ़िया चीज यही है
ये क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे, कहाँ हुआ था, इट वाज वर्चुअल। इसमें क्या है दैट इट वाज बिटवीन द टू प्राइम मिनिस्टर्स, between the two prime minister, where they approved the agreement between the UK and India regarding the migration and mobility partnership. ठीक है, migration mobility partnership. चार takeaways हैं 2030 तक will alleviate our bilateral ties to comprehensive strategic partnership. We will have deeper and stronger engagement for next 10 years in the areas of people to people contact, trade, economy, defense, security, climate action and health. General, this is general, no need to remember anything. Enhanced trade partnership for developing bilateral for doubling bilateral trade by 2030. As a part of enhanced trade partnership, India and UK agreed on to have a comprehensive balanced FTA, including interim trade agreement for delivering early gains. Transfer of Indian innovation to developing countries with Africa. We will have a India-UK global innovation partnership. This can be a question. With which country we are having a global innovation partnership? Atal Innovation Mission is under which body? Atal Innovation Mission is under which body? नीति आयोग। नीति आयोग. Very good. Then comprehensive partnership on migration and mobility. किसके लिए? Particularly for students and professionals. Along with this, technology, ICT, supply chain resilience, defense, maritime counter, इन सब पे बातें हुई, ठीक है? Global innovation partnership is between India and UK. India and UK. Question may come: India has a comprehensive strategic partnership with UK. True or false? India has a comprehensive strategic partnership with UK. True or false? It is false. Right now, we do not have the comprehensive strategic partnership. We just have strategic partnership. Okay. Very good. Golden visa system is launched by which country? Question आएगा, बताओ. बताइए, ऑप्शन दे दें. यूएस, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया. UAE. यूएई. वेरी गुड. यूएई के मिशन का नाम बताओ जो मार्स पे गया है. होप. होप. क्वेश्चन तब डिफिकल्ट हो जाता, होप गया कहां पर है तो डिफिकल्ट हो जाता, गया कहां है ये याद रखना मुश्किल था. तो संजय दत्त को गोल्डन वीजा मिला. गोल्डन वीजा क्या है? इट इज अ वीजा दैट इज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म रेजिडेंस to the people who are allowed to live, work and study in UAE without the need of a sponsor. In UAE, in general, if you have to go, you need a sponsor, a person who is giving your guarantee. And at the same time, they will be given 100% ownership of their business. The people who are having the golden visa, this will be for 5 to 10 years. It will be a long-term visa, 5 to 10 years. It will be given to investors, entrepreneurs, individuals with outstanding talent, researchers, medical professionals, scientific knowledge and remarkable students. ठीक है? तो ऐसा नहीं है that it is only given to government officials or it is only given to actors. It is given for people, anyone who is having remarkable contribution in their field. क्यों है? कम लोग वापस लोग घर वापसी बहुत सारे लोगों की हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड, इसलिए दोबारा दे आर अट्रैक्टेड. इंडिया के लिए क्या फायदा है? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ जाते हैं. सीधी बात है. इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए अगर लगता है ना लोगों को विदेश जाने सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, तो 2 ही 3 कंट्रीज हैं, है ना. 2 ही 3 कंट्रीज है कि अब लगता है हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. बच्चों में देखा ना, बस दुबई एक बार पहुंच जाए तो ये कर लें वो कर लें. कहाँ है दुबई? यूएई में, है ना. कभी पुअर पर्सन या मिडिल क्लास तो फिर भी एस्पायर कर लेती है पढ़ने के लिए, लेकिन जनरली काम करने के लिए 2-3 कंट्री से दिमाग में आती है. या तो दुबई मतलब यूएई चले जाए, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 2-3 नेम्स है ना. अब तो कनाडा
कि प्राइम मिनिस्टर का वो ऐसे पोस्टर भी आता है, कैनेडा वांट्स यू, है ना, आता है ना, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? स्पॉन्सर्ड पोस्ट आता है, कैनेडा वांट्स यू, कम टू कैनेडा, गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन कैनेडा, ये सब चीजें। ओके, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्या दिक्कत बताओ? दिक्कत चल रही है सर, क्या? प्रॉब्लम हो रही है सर, रिलेटेड स्टडीज याद ही नहीं रह रहा कुछ। अरे बेटा याद रिवीजन करना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी याद रखना सर रिवीजन तो कर रहे हैं सर कंटिन्यूअसली। रहेगा। कल बोनी कपूर को गोल्डन वीजा मिला। अच्छा, ठीक है। पेपर में बेटा ये नहीं पूछेगा कि किसको मिला, बस ये पता होना चाहिए गोल्डन वीजा। अब तो समझ में आ गया, ठीक है? अब तो समझ में आया क्या होता है, मिला किसको में क्या मतलब, है ना? मिला किसको क्या मतलब। यूपीएससी में नेम्स नहीं पूछते until unless that person is प्री इंडिपेंडेंट। प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, स्पेशली टू लिविंग पर्सन। जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, है ना? कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ले लेंगे गोल्डन वीजा, है ना? चलिए अब चलते हैं। S-400 के बारे में सुना है? कौन सी कंट्री से ले रहे हैं हम S-400? रशिया से। रशिया, वेरी गुड। S-400 ट्रायम्फ है क्या? ये है क्या? मिसाइल है, शिप है? सोचो क्वेश्चन आ जाए, S-400 इज आ, वो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा रशिया से ले रहे हैं, है क्या? सर एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम होगा। वेरी गुड, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल नहीं है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बहुत अच्छे से समझिएगा। इट इज नॉट अ मिसाइल, इट इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम. So this missile defense system is taking, we are taking it from Russia. It is called as S-400 Triumph. USA was opposing it. USA was opposing it, but we wanted to keep our country secure, and that is why we wanted to have a missile defense system. ठीक है? अमेरिका ने बोला था that there is a act, अमेरिका का एक act है that is called as CAATSA, Countering America's Adversary Through Sanctions Acts. ठीक है? इंडिया उसके अगेंस्ट, रिगार्डिंग दैट दे हैव sanctions, they have sanctions against Australia, Iran, North Korea and Russia. So if any country is dealing with those countries, USA imposes sanctions on those countries also. कंफ्यूज हो रहे हैं? यूएस रशिया कहाँ पहुंच गए समझिए। हमने रशिया से एक डील करी टू हैव S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स, ठीक है? S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स. US is against that deal. US is against that deal. Why US is against that deal? Because USA believes that, just a second. चलिए, तो यूएसए ने बोला that any country that is dealing with Iran, North Korea and Russia will be considered as violating the USA's act, countering America's adversary through sanctions act. तो इंडिया को उन्होंने वार्न किया कि why you are trying to come in the bad books of USA, ठीक है, by violating CAATSA. लेकिन इंडिया ने, in spite of that threat, इंडिया ने S-400 ट्रायम्फ डील करी, फिर उसके बाद ट्रम्प को इनवाइट भी किया, आइए इंडिया आइए, ठीक है? ये इंडिया आने से पहले हुआ था उनके, ठीक है? तो
दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, S-400, क्योंकि आईआर में बस थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी है, डिटेल पता नहीं होना है। S-400 ट्रायम्फ रशिया से किया है, इट इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। काटसा इज अ यूएसए's act, it is not a Russia's act, it is the USA act that USA uses to counter its adversaries। ठीक है, counter its adversaries, समझ में आ गया? वेरी गुड। यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? थार्ड। कैसा कोई क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है? यही क्वेश्चन है, व्हाट इज थार्ड? ठीक है, व्हाट इज थार्ड? तो इट इज द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। किसी और कंट्री के पास भी है मिसाइल डिफेंस सिस्टम? इजराइल के पास है बच्चों। क्या नाम है उसका? बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। आयरन डोम, आयरन डोम। ओके, लिख लीजिएगा, ईरान का है आयरन, वो इजराइल का है आयरन डोम। ओके, वेरी गुड। नाउ supply chain resilience initiative is between which two countries, or which is the initiative of which country? Supply chain resilience initiative, नहीं पता? अच्छा, ये इनिशिएटिव किस लिए? कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 था। कोविड-19 में अब मान लीजिए यू आर मैन्युफैक्चरिंग, सबसे मस्त चीज बताते हैं कि इंडिया में काफी ऐसी चीजें हैं जो असेंबल इंडिया में होती हैं, बट not every part is manufactured in India. Let us take an example of Samsung mobile phones. We have Samsung mobile phones assembly, largest assembly station in India. It is the largest in the world that we have started in India. But all the products, microprocessors particularly, or the chips, or the ICs that the mobile phones use, they are not manufactured in India. They are imported. During the COVID times, the need for technology increased. That means the demand for mobile phones or tabs increased, but the international transportation or international or import or export was at that time was closed because of the fear of COVID. So that affected the manufacturing in the country. So that created the problem of the supply chain, that from the backward linkages, the raw material is not coming, and that is leading into the less manufacturing of the important devices. And in order to make sure that it does not happen in future, we have to make our supply chain resilient. We have to make our supply chain resilient, and especially because when it comes to electronic devices, almost all the countries of the world are dependent upon China. Almost all the countries in the world are dependent upon China. So the supply chain resilience is dependent upon China. And if China wants, they can disrupt the supply chain. This China has done this with Japan before. Japan used to import rare earth metals from China. These rare earth metals are used for manufacturing of the electronic devices, particularly in the microprocessors they are used. China has the largest the largest deposits of rare earth metals is in China. China denied that, and at that time India exported those rare earth metals to Japan. So if China has done it earlier, it can do it again also, right? It can do that again also, yes or no? In order to have the resilience,
there is an initiative that is called the Supply Chain Resilience Initiative. It is started by India and Japan, and now Australia has also become a part of it. Australia has become now part of it. Now you have understood everything about it. Okay, everything about it. Just have a reading because this is coming in this paper. 99% chances are there that this question is coming. Just have a reading of it. Done? Now, INSTC. What is INSTC? So recently a summit was held, Maritime Summit, which was conducted virtually. It was regarding the INSTC. What is INSTC? It is a 7,200 kilometer multi-mode, that means ship, rail and road route for moving freight, not the passenger, for the freight. It involves India. India में कहां से कनेक्ट कर रहा है? बॉम्बे. देन ईरान को कहां से कनेक्ट करेगा? बताओ. ईरान में कहां से कनेक्ट करेगा? सर चाबर पोर्ट. तेहरान। वेरी गुड. यही गलती हम कर देंगे कि हमने चाबार पोर्ट सुना है, बस चाबार पोर्ट ही आंसर होगा. है ना. इट इज बंदर अब्बास. चाबार पोर्ट के बराबर में ही है, लेकिन इट इज नॉट चाबार पोर्ट, इट इज बंदर अब्बास. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा. INSTC इज नॉट कनेक्टिंग चाबार पोर्ट. ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टिंग चाबार पोर्ट, इट इज कनेक्टिंग बंदर अब्बास. बंदर अब्बास विद इन दी ईरान कैन बी कनेक्टेड टू चाबार. ठीक है, बंदर अब्बास से हम चाबार को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस है बेटा, स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है. टेक्निकली स्टेट सर्विसेज के पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, यूपीएससी में एक भी गलती नहीं करेंगे वो, बिकॉज ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है. ठीक है, उसमें एक भी गलती होती है मीडिया वाले पकड़ के बैठा देते हैं. है, थोड़ी सी भी गलती होती है मीडिया वाले जो है एकदम करते हैं कि हाउ, बिकॉज यूपीएससी इज कंसिडर्ड एज द एग्जाम दैट इज ट्राइंग टू रिक्रूट द क्रीम ऑफ दिस नेशन. ठीक है, क्रीम जो ऑलरेडी कहीं से क्रीम चुन के आई है, वहां से क्रीम. क्योंकि इंडिया में अगर आप ये समझे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना ही इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट. Preparing for UPSC itself is an achievement. तो वहां पर गलती नहीं करेंगे. बंदर अब्बास. ओके, ये कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्ट करेंगे? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, and then from Russia they will be entering into the European region. ठीक है, from Russia they will be entering into the European region. Okay, यहाँ लिखा हुआ देखो, सामने लिखा हुआ था. अच्छा, मुंबई टू बाकू आया अंदर बंदर अब्बास.
बाकू इज इन अजरबैजान, बाकू इज इन अजरबैजान, तो वाया बंदर अब्बास। सेकेंड फेज इज मुंबई टू अस्त्रखान वाया बंदर अब्बास, अस्त्रखान वाया बंदर अब्बास, तेहरान एंड बंदर अंजाली, ठीक है, बंदर अंजाली। समझ गए क्या है प्रोजेक्ट, क्यों है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या है फायदा होगा। जो आपको यहाँ जाना था आपको ऐसे घूम के जाना पड़ता था, अब आप ऐसे ही चले जाएंगे, बस यही बेनिफिट है, यही बेनिफिट। और क्या बेनिफिट है, उससे ज्यादा बेनिफिट चाहिए भी क्या हमको, है ना, इससे ज्यादा बेनिफिट क्या चाहिए हमको, चाहिए इससे ज्यादा और बताओ। यहाँ जाना है ऐसे चले जाते, ऐसे जाए, कितना लंबा पड़ गया, और रास्ते में यहाँ दिक्कत, यहाँ दिक्कत, यहाँ पे पूरा ये जो रीजन है जहाँ पायरेसी अफेक्टेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, पायरेसी यहीं तो होती है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे सुएज कनाल, यहाँ पे एक शिप फंस गई तो दिक्कत, अभी हुआ था ना, शिप फंस गई थी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में टाइम, फिर यहाँ पर ठंडा एरिया, कितना ठंडा एरिया होता है यहाँ पर ये, ठीक है, पता है ना आपको ये सब तो। अब टाइटेनिक हमें नहीं पता, टाइटेनिक कहाँ से कहाँ जा रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी टाइटेनिक, कुछ पता है आप लोगों को, हमको भी नहीं पता, क्योंकि नई टाइटेनिक एक और शिप जा रही है, उसका नाम भी टाइटेनिक रखा है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कहाँ से कहाँ जा रही है भी देख लेना, जा तो ये भी यूएसए से ही या फिर यूके से जा रही होगी, अटलांटिक में ही जा रही होगी, है ना, या तो अटलांटिक में ही रही होगी और ऊपर ही होगी, क्योंकि आइसबर्ग नीचे तो होती नहीं है ना, तो ये सब देख लेना। वेरी गुड। एक न्यूज है, बेल्जियम एम्बेसडर की वाइफ ने, ठीक है, जो साउथ कोरिया में थी, उन्होंने 2 स्टाफ की पिटाई कर दी, फिर उन्होंने बोला हम तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमारे पास, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए न्यूज में डाल दिया, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या पढ़ लेना, ठीक है। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि अगर आप फॉरेन सर्विसेज में है और आपकी वाइफ अगर किसी की पिटाई करती है तो उसमें एक ऑप्शन होगा, तो आप क्या करेंगे, कह रहे कुछ नहीं, हम चुपचाप रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पहले आते डिसीजन मेकिंग में, अब नहीं आएंगे, है ना, अब तो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो है अब एंटार्क्टिक ट्रीटी को 60 इयर्स हो गए, ठीक है, न्यूज नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ कवरिंग, सबने कवर किया, हमें भी करना पड़ेगा, फॉर द सेक ऑफ covering. So Antarctic Treaty, it was signed between 12 countries in order to make it, the Antarctic region, a demilitarized zone, and it should be used only for scientific purposes. It will be used only for scientific research purposes. Okay. Antarctica is defined as the land and ice shelf south of the 60 degree south latitude. 60 degree south latitude में जो भी region सब Antarctica मानेंगे, everything will be considered as Antarctica, because कोई बाउंड्रीज तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफ अंटार्कटिका तो कोई है नहीं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ अंटार्कटिका तो है नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इट वाज साइंड बिटवीन द कंट्रीज इन 1959. इंडिया is also a part of this treaty, but it was not the founding member. It was not the founding member. Now किस लिए यूज होगा, पीसफुल पर्पसेस होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डिस्प्यूट क्लेम टेरिटरी नहीं होगा, वहां पर कोई भी दिक्कत बातचीत नहीं होगी, बस। 4 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर देयर, 4 on Antarctica. First is 1959 Antarctic Treaty, second is 1972 Convention on the Conservation of Antarctic Seal, third is 1980 Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and fourth, environmental protection of Antarctic Treaty. Too much of detail, this might not be asked. Okay. Operation Sagar Araksha. Second, there was a fire on a ship in the coast of the Colombo, and Indian Coast Guard along with the Sri Lankan authorities helped to fight that fire, and that was called as the Operation Sagar Araksha. Okay, that was called as the Operation Sagar Araksha.
Okay, then the detail is provided. India being the part of ICG or ICG as Indian representative is an active member of South Asian Cooperative Environment Program, SASEP. So it was part of the SASEP, South Asian Cooperative Environment Program. Okay, there is also for treaty or the vessel was caught fire and it was classified as an international maritime dangerous goods, and that is why we had to fight that fire. Okay, what is SASEP? SASEP, South Asian Cooperative Environment Program. It started in 1982 for the protection of the environment. कौन-कौन members है? Afghanistan, Sri Lanka, in Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan. All the members of SAARC. ठीक है? No need to remember it in detail. Very good. Operation Devi Shakti is related to Operation Devi Shakti. Operation Devi Shakti is related to न्यूज चैनल पे किसके बारे में सारी बातें हो रही हैं? आज के न्यूज चैनल के साथ सबसे हॉट टॉपिक क्या है बताइए? अफगानिस्तान। The evacuation of the Indians from Afghanistan is Operation Devi Shakti. Okay. ऑपरेशन राहत कौन सा था? यमन क्राइसिस से इंडिया ने जो इवैक्यूएट किया था. ऑपरेशन मैत्री वाज कैरिड आउट during the Nepal earthquake. Operation Save Homecoming was during the Libyan civil war. Operation Sukoon was during the 2006 Lebanon war. ठीक है, 2006 थी लेबनान war. तो कुछ लोग कहते हैं ना इंडिया पहले कुछ नहीं करता था, सुना होगा आपने. देखो अब हम सब लोगों को ले आते हैं. ऑपरेशन सुकून में तो हमने इंडियन, श्रीलंकन, नेपाली सबको ले आए थे. ठीक है, सबको ले आए थे. लीबिया में भी इवैक्यूएट किया था. ओके, लीबिया में भी इवैक्यूएट किया था. ऑपरेशन एक और है, संकट मोचन भी है. ऑपरेशन संकट मोचन. ठीक है, ऑपरेशन संकट मोचन भी है. बहुत सारे हैं, ऐसे याद नहीं रहेंगे आपको. ऑपरेशन एक और भी तो है, वैक्सीन मैत्री, वो भी है. ऑपरेशन संजीवनी भी है. ठीक है, याद रखिएगा. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एशियन कंट्रीज प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया प्लस Australia and New Zealand. They are part of a free trade agreement that is called as Regional Comprehensive Economic Partnership. It covers 28% of the world GDP, 28% of the world trade, and 30% of the world population. 30% of the world population. Okay. ठीक है, कोई दिक्कत? बस यही बता रहे हैं. इन्होंने बोला इंडिया, हम इच्छा करते हैं इंडिया भी ज्वाइन कर ले, बस ये न्यूज है. इंडिया इसका मतलब इज नॉट अ मेंबर. ये हमने आपको यहाँ बता ही दिया. इंडिया इज नॉट अ मेंबर. क्यों नहीं इंडिया ने बोला है? इंडिया ने बोला कि एक बार बताइए, चाइना मेंबर है, चाइना के साथ डायरेक्टली ना कर ले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अगर ऐसा ही करना है तो सिंपल सी बात है. अगर हमें एक ऐसे ब्लॉक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है जहां पर चाइना है तो डायरेक्टली कर ले, क्योंकि चाइना तो सब काम चाइना ही कर रहा है ना, सब काम चाइना ही कर रहा है. तो फिर क्या फायदा हुआ? इसलिए वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. दूसरा, हमने इन सबसे क्या गारंटी है चाइना का ही माल नहीं बेच रहे होंगे? रूल्स ऑफ ओरिजिन इन्होंने मानी नहीं बात. रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात नहीं मानी तो क्या हम चाइना से डायरेक्टली ले लेंगे? इसलिए इंडिया डिड नॉट. अर्लियर इंडिया वाज, बट नाउ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ RCEP. ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड. इंडस वाटर ट्रीटी का आफ्टर 2.5 ईयर परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग हुई थी. इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप सबको पता है कि नहीं पता है? बस ये बता दो. ठीक है, ये तो बेसिक्स है, ये सब तुमने पढ़ा होगा. 1960 में एक ट्रीटी हुई थी फॉर डिवाइडिंग द 3 रिवर्स. ऊपर के 3 जो है 90% 80% पाकिस्तान यूज करेगा, नीचे के 3 का 100% इंडिया यूज करेगा. ठीक है, दिस इज द इंडस वाटर ट्रीटी. जिसको नहीं पता पढ़ लीजिएगा. ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ये तो माले है तो मालदीव में ही बन रहा होगा, है ना.
मॉलडीव में बन रहा होगा, बना कौन रहा है, इंडिया बना रहा है। इट विल बी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन मालदीव्स, इट विल बी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मालदीव्स इन मालदीव्स। ठीक है, मालदीव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। कर क्या रहे हैं, इट विल बी अ कनेक्टिविटी ब्रिज, इट विल बी अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज दैट विल लिंक द मॉले विद नेबरिंग आइलैंड ऑफ विलिंगली, गुलीफालू एंड थिलाफुशी। ठीक है, विलिंगली, गुलीफाहू एंड थिलाफुशी। इट क्वेश्चन में कम दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन और व्हाई दे वर इन यूज, तो दे आर पार्ट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ मालदीव्स। ओके, जो मालदीव गया होगा उसको हो सकता है पता भी हो। ठीक है, जो नहीं गया है वो जाएगा शादी के बाद, कोई और ऑप्शन क्या होता है ना। ठीक है, तो जाके देख लेना। चले जा रहा विलिंग के लिए, चले जा रहा गुलीफाऊ चले जा, थिलाफुशी चले जा रहा। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत, ग्रेटर माले प्रोडक्ट बना लेंगे। ऑपरेशन मीर के बारे में सुना, ऑपरेशन मीर, NEER, मीर, नहीं, ओह माय गॉड, मीर का मतलब क्या होता है, हाँ, मीर का मतलब पानी। क्या? पानी, पानी। वेरी गुड, इंडिया ने पानी, अगर ऑपरेशन मीर है तो मतलब पानी दिया हो हमने कहीं पर, है ना, है ना, है ना। किस कंट्री को दिया, है ना, इस कंट्री को दिया, मालदीव। ऑपरेशन नीर, इंडिया प्रोवाइडेड वाटर टू मालदीव। ठीक है, समझ में आया, इंडिया प्रोवाइडेड वाटर टू मालदीव। वेरी गुड, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव ने बोला है कि हम लोग सिक्योरिटी पे कोलैबोरेट करेंगे। It was the part of the Colombo Security Enclave. It was a part of the Colombo Security Enclave where they want to have the security in the region of Indian Ocean that covers the India, Maldives and Sri Lanka. ठीक है, India, Maldives and Sri Lanka. Indian Ocean region किसके लिए, particularly because of the growing China's presence in the region. ठीक है, growing China's presence in the region. इसलिए एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, 4 पिलर्स वर देयर, security cooperation covering areas of marine security, human trafficking, counter terrorism and cyber security. Okay, it was a deputy national security advisor level meeting, that is not that important. Now India and Sri Lanka had a currency swap deal. India promised that they will be providing $1 billion currency swap to Sri Lanka. ठीक है, करेंसी स्वैप टू श्रीलंका। करेंसी स्वैप क्या होता है कि you promise that country that in case there is a problem that we will be providing you this much money in exchange of the import and export of the trade that we are having, so that the market exchange rate do not affect the trade. Okay, do not affect the trade. It is a type of a deal where we provide that country liquidity in case of crisis. Okay, बाओ फोरम क्या है, बाओ, बाओ, बोआओ, बोआओ. So it is a forum. It is a forum which is a part of a non-profit international organization which holds its conference regularly. It is a program of 29 states. It is modeled in the same manner as World Economic Forum, and it is for the economic integration in Asia. It is for the economic integration in Asia. This is the BAO forum. Now China has started a 17+1 cooperation forum. China started at 17, it means 17 East European nations and 1 China. It has started a forum with these countries in 2012. Okay, 2012, particularly to promote its idea of the One Belt, One Road initiative or Belt and Road initiative. Now, amongst them, Lithuania is saying that they do not want to continue to be a part of this forum. So 17+1 forum is related to China and East Europe. 17+1 is related to China and Eastern Europe. Okay. Okay.
सीधा चलते हैं, क्योंकि आपको ना पॉइंट पहले पता लग जाता है, फिर आप गेस नहीं कर पाते। मैं गेस कर लेते हैं। वेरी गुड। अब in the United Nation for addressing the challenges of racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन सी कॉन्टिनेंट के साथ होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, xenophobia, intolerance, racism किस कॉन्टिनेंट के साथ होता है? अफ्रीकन। वेरी गुड। तो उसके लिए एक यूनाइटेड नेशंस ने परमानेंट फोरम बनाया है फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट. It will consist of 10 members. 10 will be elected by the General Assembly, 5 will be elected by General Assembly, and 5 will be appointed by Human Rights Council. It will have 10 members for that. The African people are not discriminated. ठीक है, इसीलिए है. IBSA के बारे में सुना? IBSA, 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 IBSA. आप लोगों ने IR नहीं पढ़ा है कभी भी? किस किसने IR नहीं पढ़ा है कभी भी? 1 2, बाकी सर पढ़ा है बस कॉलेज ग्रेजुएट करने के लिए. मतलब नहीं पढ़ा है. ठीक है, हाँ मतलब नहीं पढ़ा. यूपीएससी की तैयारी में नहीं पढ़ा. किस किसने नहीं पढ़ा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं. 1 2 हो गए, बाकी सबने पढ़ा हुआ है? हाँ ना कुछ तो हाँ ना बताने में कुछ नहीं जा रहा हमारा. चलो डीएम में बता दो, पर्सनली मत बताओ, मतलब सबको मत बताओ. ठीक है, तो इब्सा कुछ ग्रुपिंग से हम थोड़ा सा डिटेल में बताते रहेंगे फ्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है. इब्सा, ठीक है, इब्सा नेम सजेस्ट इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. इट इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स. पहले बहुत अच्छे समझिए, ब्रिक्स इज द ग्रुपिंग ऑफ 5 मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, इसमें 2 लोग कौन है जो डेमोक्रेसीज नहीं है? चाइना एंड रशिया. तो इंडिया ने, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ने बोला कि हम लोग तो डेमोक्रेसीज है, हमारे अलग भी तो ग्रुप होना चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना. वेरी गुड. तो एक गलत ग्रुप बनाए इब्सा. क्यों? चाइना जहां होगा हम उसमें बात ही नहीं कर सकते. हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम अच्छे से अपने रिलेशंस बना पाए. ठीक है, और जहां पर रशिया और चाइना होंगे दे विल बी डोमिनेटिंग, लेकिन जहां ब्राजील, साउथ अफ्रीका है वहां पे हम लोग भी डोमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म बना. इट इज फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन. इट इज फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन. एंड रिसेंटली इसका एक फोरम हुआ दैट वाज हेल्ड वर्चुअली. इंडिया इज करंटली द चेयरपर्सन ऑफ इब्सा, सिमिलरली एज ब्रिक्स. ओके, कब बना? 2003 में बना. ठीक है, 2003 में बना था. ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स इसके बाद बना. ठीक है, ब्रिक्स इसके बाद बना, क्योंकि 15 सेशन है ना, तो 2021 में से 15 माइनस कर लो. अभी थोड़े दिन पहले 15 था ना, 15 माइनस कर लो. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 2004 में बनना शुरू हुआ था. फॉर्मुलाइज हुआ था 2007 में हुआ. फिर उसमें 2008-9 में सबमिट हुए. 10 में साउथ अफ्रीका वाला हम भी आएंगे. फिर 2011 में वो ब्रिक्स बन गया. 2011 में वो ब्रिक्स बन गया. 2004 में तो जिन्हो नील ने बोला था कि ऐसा कुछ आएगा. इब्सा उससे पहले से, तो यानी कि इब्सा इज बिफोर ब्रिक्स, याद रखना. ठीक है, इब्सा इज बिफोर ब्रिक्स. ओके, आर वी क्लियर? क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? नो. नो किसके लिए? आईआर पढ़ने के लिए नो या आगे बढ़ने के लिए नो? पुराना हमें लग रहा है पुराने के लिए आया है, पहले का है ना, 2 मिनट पहले. वेरी गुड. चलिए कोई नहीं, हम लोग आईआर स्टार्ट प्री के बाद ना एक बार आईआर भी पढ़ाएंगे, जरूर अटेंड करिएगा. एसए में बहुत काम रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है. पेपर 2 में तो रहेगा ही रहेगा, चाहे इस साल मेंस दे रहे नहीं दे रहे. आईआर तो पढ़ के रखिए, बहुत जरूरी है. प्री में 3-4 क्वेश्चन तो मक्खन के हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है अरे किड्स, ऐसा निकलता है क्वेश्चन देख किड्स. अगर आपने आईआर पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा है तो इब्सा ही ऐसा लगेगा, इब्सा ये क्या पूछ लिया. सोचो ना, विच आर द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ इब्सा, क्वेश्चन आ जाए. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ इब्सा. सोचो, मतलब
और इब्सा के बारे में नहीं पता है। कितना खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये। कोई दिमाग लगा पाएगा कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका भी नाम हो सकता है इसका? क्या नहीं, इतना आसान थोड़ी पूछ लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ RIC? ठीक है, ऑप्शंस यूके, रशिया, इंडिया, चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ RIC? यूके, रशिया, इंडिया, चाइना। बताओ। हाँ, RIC मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, एक ग्रुपिंग है अलग से। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं IR में। देखो एक बात सोचिए ना, आप लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपने IR नहीं पढ़ा, तो उसका मतलब IR को लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और UPSC नहीं पूछ सकते क्योंकि सिलेबस उन्होंने लिखा नहीं है। ये भी तो है, डिटेल में नहीं पूछ सकते ना। Very good. 7th edition of Indian Ocean Naval Symposium was hosted by French Navy at Reunion Island. ठीक है, अच्छा, does France have stakes in Indian Ocean? Is France a Indian Ocean rim country? Is France a Indian Ocean rim country? बताओ कैसे? फ्रांस तो वहां दूर, ये जो रियूनियन आइलैंड है ना, फ्रांस का है। रियूनियन आइलैंड फ्रांस है, यही थोड़ा पास में, मैप के हिसाब से अगर हम चले तो थोड़ा सा यहाँ पे पास में ना एक और आइलैंड है, डियागो गार्सिया, वो यूके का है। तो यूके इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। है यूके का, रेंट पे दिया हुआ है यूएसए को। ठीक है यूके का, रेंट पे दिया हुआ है यूएसए को, और यूएसए ने अपना उसको मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो 7th edition of Indian Ocean Naval Symposium was held. It is very important. So it is not the first time. UPSC has asked twice about the Indian Ocean Naval Symposium. So it is a biennial event. It is a biennial event. The question was, it is an annual event. It is a biennial event conceived by Indian Navy in 2008. It means it is not started recently. It is a voluntary and inclusive initiative that brings together navies of the Indian Ocean littoral states for maritime cooperation and security. It serves also for the humanitarian and disaster relief. Right now, it has 24 member nations and 8 observer nations. It is dividing areas into 4 sub-regions: South Asian littorals, West Asian littorals, East African littorals, and Southeast Asian and Australian littorals. So this is about the Indian Ocean Naval Symposium. The particular focus is the maritime security. Okay, the particular focus is maritime security. Things to remember: it is not started recently. It is started by Indian Navy. So it is an Indian initiative. It includes 24 states and it includes other observers also. The members are geographically grouped. It is also involved in disaster relief and humanitarian assistance. Then there is LEAF Coalition. LEAF Coalition is for lowering emission by accelerating forest finance. It means for afforestation or increasing the resources by providing in the forested areas, they want to lower the emissions. It was announced by the Leaders Summit on Climate 2021. What is LEAF Coalition? LEAF Coalition is one of the largest ever public-private effort to protect tropical forests. It is the effort to protect tropical forest, be particular, and intend to mobilize $1 billion for financing committed protecting the tropical forest. Okay, so LEAF is focused on the tropical forest. It is a collective initiative of USA, UK, and Norway. It is the collective initiative of USA, UK, and Norway. Okay, it includes transnational companies like Unilever, Amazon, Nestle, Airbnb, etc. Okay, it is based upon result-based financing model. The performance will be measured on the basis of TREES standard introduced by REDD plus Environmental Excellence Standard. Okay, this summit was held virtually. 20 leaders, including Prime Minister of India, participated. Okay, and what is REED plus? You also know. Environment and ecology आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. इसमें प्लस का मतलब क्या है? So social upliftment.
poverty alleviation, social upliftment. It means bringing change in the lives of the indigenous people also. Okay, this is the Leaf Coalition. Now the world, particularly G20 and the OECD, they want to bring a global tax framework, that they want to tax the global companies, something that is happening in India, but it is gaining benefits in the UK, then that benefit is actually gaining benefit, or that companies gain benefit in UK by selling the products in, let us say, Netherlands. Where will it be taxed? And they will try to tax it in Netherlands because the taxation is very low there. So India is losing its tax, UK is losing its tax, and Netherlands is already having such a low tax regime, so it is not losing anything. Okay, it is not losing anything. In that condition, the world wants to have a global tax framework, which will be based upon two pillars: dealing with the transnational and digital companies, dealing with low tax jurisdiction to address cross-border profit system shifting and treaty shopping. Any cross-border profit shifting matlab where the profit earned that is shifted to those countries where the taxation is low. And treaty shopping, for example, India and let us say India and USA has a treaty that they will not tax each other's company. Now the company that is located in another country will register itself in India and then open its office in USA, because the treaty is there and there will not be any taxes. So this is called as treaty shopping. So this is what they are trying to have, the global corporate tax. Okay, but if it come into picture, India have to roll back its equalization levy. We have already discussed what is equalization levy. We have discussed it twice. Okay, very good. What is OECD? You all know. If you don't know, just have a reading of it. डन, पढ़ लिया हमने इसके बारे में. वेरी गुड. तो G20 में कौन कौन से मेंबर्स है? दैट मे बी अ क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ G20? आंसर दिस स्टेटमेंट. G20 कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. ट्रू और फॉल्स? क्या इतना सिंपल? फॉल्स. ऐसा कैसे? यूरोपियन यूनियन है सर. Very good. So G20 is not a group of, it is not a group of 20 countries, it is a group of 19 plus EU. It is a group of 19 plus EU. Okay. So these are the countries: Canada, US, Mexico, North America की तीनों बड़ी बड़ी. यहाँ ब्राजील एंड अर्जेंटीना 5 हो गई. ठीक है. रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया 10 हो गई. बड़ी बड़ी याद करें. यूएस, मैक्सिको, कनाडा. याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. जापान, रशिया, इंडिया याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. साउथ कोरिया, चाइना याद रहेगा. ठीक है. कितने होगा? 8 हो गए. ब्राजील, अर्जेंटीना 10. अब याद करने का और क्या. अब यूरोप में कौन कौन होंगी? यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस होगी ही होगी. 14 हो गई. गल्फ में सिर्फ सऊदी अरेबिया है. गल्फ में सिर्फ सऊदी अरेबिया है. देन टर्की इज देयर. ठीक है. टर्की इज देयर.
then South Africa, Indonesia, Australia. याद क्या रखना है, न्यूजीलैंड is not a part of G20. Okay, New Zealand is not a part of G20. First thing that you need to remember. Second thing that you need to remember, from Southeast Asia, only Indonesia is a part of G20. Only Indonesia is part of G20. From Gulf, only Saudi Arabia is part of G20. ये याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, न्यूजीलैंड है कि नहीं है, पहला कंफ्यूजन. दूसरा कंफ्यूजन, यूएई है कि नहीं है. ठीक है, अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका याद, कंफ्यूजन है ही नहीं. इजिप्ट आप ध्यान नहीं देंगे इतना. ठीक है, फिर साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना और टर्की. ठीक है, टर्की इज ऑल्सो अ पार्ट. टर्की इज ऑल्सो पार्ट. ओके, कोई दिक्कत तो नहीं. वेरी गुड. पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द FATF ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट कौन से ग्रुप की होती है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF क्या है, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी established in 1989 as an initiative of G7. It is an intergovernmental body established in 1989 as an initiative of G7. ये क्या करती है, it is make sure that two things are not happening. बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, money laundering and proliferation of weapons of mass destruction. दो चीजें रोकती है. Though it is a financial action task force, but its purposes are two. First, to combat money laundering, and second, to देखिए अच्छा लिखा हुआ ही है इसमें. 2001 में combat terrorist financing was included, and 2012 for proliferation of weapons of mass destruction, financing of proliferation of weapons of mass destruction. क्योंकि हम बाकी सब तो कर लेंगे, weapons of mass destruction वाले को हटा देते कि है ये तो फाइनेंशियल के लिए है. ओके, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, वो कंट्रीज जहां पर ये सब चीजें, ये जो बताया ना, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, वेपन मास डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, एंड द कंट्रीज दे शुड नॉट बी डूइंग एनी बिजनेस विद देम, दैट इज ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट मींस वार्निंग that if you do not mend your ways, then you will be put under the blacklist. Okay, you will be put under the blacklist. So it is like a warning. Pakistan is on warning for so many years now. Okay, for so many years now. Okay, समझ में आ गया? Very good. Now there is a grouping called as OPEC, oil producing and exporting countries. Plus, it means some countries which are part of OPEC, in addition to those, they are having a deal to cut down the production of oil till 2020 April, because the prices of oil were falling. Previous year, you must have even heard that the oil prices have now been into negative. You must have heard that oil prices became negative. क्या नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं, कल ही भरवाया हमने तो, ठीक है, कल ही भरा है तो, लेकिन ऐसा टाइम था कि ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग इवन इनटू नेगेटिव. तो उसको डील करने के लिए अब क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो और डिमांड उतनी है तो प्राइसेस फॉल करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई कम करेंगे सो दैट प्राइसेस विल राइज. UAE is now not supporting that plan, that beyond April 2020 you should not be cutting down the production. UAE wants to increase the production or either use its baseline to identify how much it is producing, because UAE believe when this agreement was signed, the UAE level of production was taken in such a manner that UAE was allowed to produce less as compared to other countries. UAE is against the extension of the cut in oil production beyond 2022. Okay, so it was a 2-year agreement. यही है, पढ़ लीजिएगा क्या इसका कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे हो गए, यही समझाया पूरे में. ठीक है, यूएई ने वही बोला कि भैया हमारा जो बेस लाइन है वो यूएई की प्रोडक्शन कैपेसिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसको चेंज करो, अदरवाइज हम एक्सटेंड नहीं होने देंगे. OPEC क्या है? It was started in 1960 by 5 countries: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela,
and now it has total 13 members. Its headquarters are in Vienna, Australia. Gulf में याद रखिएगा, Yemen is not a part of OPEC. Yemen is not a part of OPEC. गल्फ में कौन है? 1, 2, 3, ओके. बहरेन भी इसका पार्ट नहीं, OPEC प्लस में आ गया है, ठीक है, OPEC प्लस में आ गया. अदरवाइज बहरेन वाज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट. बहरेन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना में. वियना. इज ऑस्ट्रिया अ पार्ट ऑफ OPEC? Is Austria a part of OPEC? Is Austria part of OPEC? No. Austria is not a part of OPEC, but headquarters of OPEC are in Austria, Vienna. Okay, याद रखिएगा. Member नहीं है, लेकिन headquarter. India is a member of OPEC. India is a oil importing nation. So how can it be a member of producing and exporting nation? Okay. Are we clear with this? Very good. Now Africa became the first continent to complete the digital land use data. Digital land use data means how much data was there, how the land use has changed, how much deforestation is there, how the degradation of land has happened. This is all now digitally recorded for Africa. It is now digitally recorded for Africa. So Africa is the first continent in the world which is having the digital land use data. Okay, very good. Now there was a meeting of SCO defense ministers. Which countries are the members of SCO? Which countries are the members of SCO? SCO is Shanghai Cooperation Organization. Okay, Shanghai Cooperation Organization. There are how many members in SCO? How many members in SCO? 8 members are there in SCO. कौन है? Let us have a look because this may be a question. Is India a member of SCO? Yes, no? Yes. Okay, India is a member. So which all are the members? China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan. ठीक है? China, Shanghai Cooperation तो Shanghai तो China में तो है, Shanghai तो हो गई, है ना? Very good. So China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan. जब तक ये थे, it was called as the Shanghai 5. It was called as the Shanghai 5. फिर 6 हो गए, उज्बेकिस्तान added, तो ये it became SCO. ठीक है? तो Shanghai 5 में उज्बेकिस्तान नहीं था. Then India and Pakistan recently became the members of SCO. Observer कौन है? ये सब observer के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन ध्यान सुन लीजिएगा. अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया and Belarus. These are the observers. क्या है ये? It is a regional grouping. It is a grouping that deals with the strategic issues. Related to the region. इसमें सबसे main इनका जो purpose है was to deal with the counter-terrorism issues and the peace and security in the region. Okay, counter-terrorism and peace and security in the region. So it is particularly related to this. It has an initiative within the SCO. It has an initiative that is called as RATS. Regional Anti-Terrorism Squad है क्या है? मतलब RATS है. चौथा S याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं. Structure, regional anti-terrorism structure. RATS is also part of SCO. Okay. These are the members. Now, the CAG of India has been chosen to become the auditor of OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Now, OPCW, is it a part of UN? Is it a part of UN? OPCW, is it a part of UN? No. OPCW is not a part of UN. Okay. Now the selection was through an election. Okay. It was not appointment. It was through an election. Now what is OPCW? It was established by the Chemical Weapons Convention in 1997.
The purpose of this organization for prohibition of chemical weapons is to prohibit the use, stockpiling, transfer of chemical weapons by signatory states. ठीक है. बहुत रिसेंटली OPCW न्यूज में था कुछ साल पहले रिगार्डिंग दी यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन सीरिया. यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन सीरिया में गैस यूज हुई, दैट वाज कॉल्ड एज सरीन गैस, SARIN, सरीन गैस. ठीक है, तो हो सकता है विद गैस वाज यूज्ड इन सीरिया, पूछ सकते हैं, तो दैट वाज सरीन गैस. ठीक है, ये इंस्पेक्शन करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट सबमिट होते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. इट गॉट नोबेल प्राइज इन 2013. 2020 में नोबेल प्राइज किसे मिला है? 2020 में नोबेल प्राइज किसे मिला है? सर केमिस्ट्री में क्रिस्पर का. नहीं, पीस प्राइज. तो साउथ अफ्रीका में दो है वो. साउथ अफ्रीका जो है वो नहीं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. साउथ अफ्रीका तो इससे पहले मिला था, जो डॉक्टर थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला. ठीक है, चाइना ने एशियान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होस्ट करी थी. ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. मीटिंग क्यों होस्ट करी थी? उन्होंने बोला देखो हमारे खिलाफ ये ग्रुप बना रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी, हम तो इतने अच्छे हैं. मान लीजिए आपके खिलाफ कोई ग्रुप बना रहा हो इस क्लास. मान लो आप लोग क्लास में, हम लोग बैठे हैं एंड क्लास में ना एक ग्रुप बन गया क्वाड करके. ठीक है, क्वाड करके हमारे खिलाफ. तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वाड के मेंबर नहीं है सबको बुलाएंगे अपने डिनर पर, कहेंगे देखो हमने पैसा क्या गलत किया, उनको देखो क्वाड बना लिया हमारे खिलाफ. ये हो रहा है और कुछ नहीं हुआ. ठीक है, क्या है एशियान? एशियान इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967. इसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी. वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी. इट कंसिस्ट ऑफ 10 नेशंस. इनिशियली कौन कौन से थे इसमें? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी एंड फिलीपींस. दीज 5 वाज देयर. ये जो MCLV ये बाद में ऐड हुआ. ठीक है, ब्रूनी बाद में ऐड हुआ. थाईलैंड पहले था. थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस. दीज आर द ओरिजिनल मेंबर्स. MCLV म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एंड ब्रूनी, ये बाद में ऐड हुए. ठीक है, प्रेजेंटली देयर आर 10 मेंबर्स इन एशिया. एक और मीटिंग हुई, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस. इट वाज हेल्ड बिटवीन द 10 members of ASEAN plus 8 dialogue partners. So Asian Defense Ministers meeting is only conducted between the ASEAN members. When the plus is added, it adds 8 more members. 3 South East Asia के, China, Japan, South Korea, then Australia, New Zealand, India, US and Russia. ये ऐड हो जाते हैं, तो ये ADMM प्लस बन जाता है. ठीक है, तो ये कहाँ हुई? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया. ब्रूनी इज द चेयर. ठीक है, ब्रूनी इज द चेयर. आपको मेंबर्स याद होने चाहिए बस, कौन कौन मेंबर किस किस का है. आई फैमिलिया क्या है ये बता दो, क्वेश्चन आ जाएगा. व्हाट इज आई फैमिलिया? किस चीज से रिलेटेड हो सकता है आई फैमिलिया? किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? अगर नहीं पता होगा ना, गलती से भी अटेम्प्ट मत करना. ये आइडेंटिफाई करना है, इंटरपोल का इनिशिएटिव है डीएनए के थ्रू. ठीक है, डीएनए के थ्रू केसेस सॉल्व करने के लिए. मान लीजिए कोई आइडेंटिफाई हुई, कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, ठीक है, मिसिंग पर्सन है, तो डीएनए लेके आइडेंटिफाई करना. दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंटरपोल. ठीक है, तो पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा. आई फैमिलिया याद रखना, फैमिलिया मतलब डीएनए से रिलेटेड है. ये नहीं कि फैमिली प्लानिंग का मेथड है. एक ऑप्शन जरूर होगा, इट इज अ न्यू मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. ठीक है, ये जरूर ऑप्शन रहेगा. ओके, आई फैमिली. क्या 3 पर्पस होंगे इसके? डेडिकेटेड ग्लोबल डेटाबेस होगा, डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड बोनापार्टे विल बी यूज्ड एंड इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस विल बी प्रोवाइडेड. देन ऑपरेशन पेंजिया 14. कुछ आइडिया, कुछ सुना है न्यूज में? कोई आइडिया नहीं. ऑपरेशन पेंजिया 14 is another initiative of International Criminal Police Organization, that is the Interpol, to
target or to eliminate the use of fake medicines and fake medical products online. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टीवी पे आता है ना, टीवी जैसे आप ऑन करते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट कई सालों से खा रहा हूँ या खा रही हूँ, पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब तो मैं जो है रेलवे की जो ऊपर वाली बर्थ है उस पर बिना सीढ़ी पे चढ़ जाता हूँ, मैं ऐसे ही इतना लंबा हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, है ना, आते ना ऐड। वेरी गुड। वो फेक है ना, फेक है। अगर वो फेक है, क्या नहीं फेक नहीं है, हमारी हाइट बढ़ी थी 0.001 सेंटीमीटर, है ना, बढ़ी थी, फेक तो नहीं है, बताइए। तो ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उनको अवेयर करना और रेगुलेट करना, दैट इज ऑपरेशन पेंजिया। तो ऑपरेशन पेंजिया वरना सुनेंगे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है, फॉसिल स्टडी करना हो, याद है पेंजियन पेंथलासा, पेंजियन पेंथला, पेंजिया क्या था, ओशन था कि कॉन्टिनेंट था? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, ठीक है। स्टेट में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पेंजिया क्या है, कॉन्टिनेंट की ओशन, ठीक है। तो पेंथलासा वाज दी ओशन, सही है ना, बता दो कोई ज्योग्राफी वाला, ठीक है। जब हमें ज्योग्राफी में हमारा हाथ तंग रहता है इसलिए हमें नहीं पता है। पेंथलासा ओशन है, वेरी गुड। ऑपरेशन पेंजिया, इंटरपोल के बारे में पढ़ लीजिए, क्या इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। मजाक मजाक बोलते थे ना, कह रहे यार पता नहीं हमारा पेन नहीं मिल रहा, बचपन में कहते थे अरे अभी इंटरपोल को बुला रहे हैं, है ना, बचपन में कहते थे ना। क्या है इंटरपोल? इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 194 कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स आर इन फ्रांस। 1923 में बना था, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ दिस इन 1949। ये कुछ नोटिस इशू करते हैं, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो, ब्लैक, ये सब नोटिस इशू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी क्राइम, ओके। देन a report was released by Charities Aid Foundation, World Giving Index 2021, ठीक है। चैरिटी एड फाउंडेशन रिपोर्ट रिलीज करती है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। सिमिलरली नाटो का एक समिट हुआ था, इसे नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नाटो इज एन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, ठीक है, 1949। इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बेस्ड अपॉन कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। इसमें सिंपल प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि an armed attack on one shall be considered as an attack on all. This is the principle of NATO. This is the principle of NATO. Okay, very good. Now information fusion center एक इंडिया ने बनाया था इंडियन ओशन रीजन के लिए। इंडिया established an information fusion center for the sharing of information regarding the Indian Ocean region in 2018. They established this in 2018. The purpose was to coordinate with the regional countries on maritime issues and act as a repository of maritime data. ठीक है। Its headquarters coastal areas में नहीं है, गुड़गांव में इसके headquarters है। Gurugram has the headquarters. It has partnership with 21 countries and 22 multinational agencies across the globe. Multilateral agencies, multinational agencies across the globe. Okay, across the globe. समझ में आया? ये किसके लिए है? दे थ्रू दिस सेंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ वाइट शिपिंग, यानी कि कमर्शियल शिपिंग के बारे में दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर कंट्रीज। इसमें न्यूज में क्यों है? बिकॉज यूके हैज अपॉइंटेड द लाइजन ऑफिसर एट द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड द लाइजन सेंटर एट द लाइजन ऑफिसर एट द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ये पर्पस है। ये इंडिया का फ्यूजन सेंटर के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट इट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या है? फुल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फुल टाइम information sharing regarding the marine security, okay. Now what is group of 7? There was a meeting of G7. India has been invited as a guest country. Who are the members of G7? G7 पहले G8 हुआ करता था, रशिया को बाहर निकाल दी तो G7 हो गया। It started in 1975. Canada, France, Germany, Italy, France, Germany, Italy, UK from Europe, याद रखिएगा साथ में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके फ्रॉम यूरोप। यूएस तो गई होगा, ये 5 तो याद ही रहेंगे। वेरी गुड।
जापान एंड कनाडा, ये 7 है। चाइना नहीं है, ठीक है, रशिया को तो निकाल ही दिया बाहर। P5 के 3 है, इटली, जर्मनी, कनाडा एंड जापान, ये G7। रशिया को निकाल दिया। रशिया को निकालते और रखते रहते हैं। रशिया को कब निकाला? क्रीमिया का जब एक्सेशन किया था यूक्रेन में रशिया ने, तो तब उसको निकाल दिया था। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, कोई भी टाइप को बुढ़ापा पेंशन? नो, वेरी गुड। एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर ने सेमिनार अटेंड करी थी, ठीक है, कोऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, इसीलिए आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, ठीक है, सेमिनार जो थी दैट वाज द कोऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, कोऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है और बता देते हैं, आप लोग थोड़े नींद से में है। एक पर्सन, हम स्टेट नहीं बताएंगे, एक पर्सन के बैंक अकाउंट में 5.5 लाख रुपीस ट्रांसफर हो गए, ठीक है, गलती से। तो बैंक वालों ने बोला कि वापस दो, गलती से आ गए हैं परमिशन, तो कह रहे हम नहीं वापस दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, तो हमारे 15 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट आई है, ठीक है, और लेट हो गया इसलिए 50,000 इंटरेस्ट भी आया है, ठीक है। उसके लिए तो आ गए अच्छे दिन, और क्या चाहिए। वेरी गुड। अगर आप में से कोई हो जिसके वो जो जिसके में आए हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छे दिन ले आना, ठीक है। हम किसी को नहीं बताएंगे, आप ही हो। वेरी गुड। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक किस लिए है? एशिया के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है। वेरी गुड। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मनीला में, 1966 में बना था। इसके मेंबर्स सिर्फ एशिया से नहीं, बस याद रखिए। The members for the Asian Development Bank are not only from Asia. Its largest contributor is US and Japan. Largest contributor US and Japan. Even Australia is also a member. India is also a member. वो तो है ही, इंडिया तो एशिया में important country है, तो India is also a member. Okay? समझ में आया? Very good. अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये क्या है? इसके बारे में सुना है? ये एक बैंक है जो चाइना का इनिशिएटिव से बना है। Its operations are already beginning. इंडिया ने क्या किया है? They have signed a loan agreement for Assam Intrastate Transmission System Enhancement Project of $300 million. India and Russia are also the members. China is the largest stakeholder. India is the second largest, and Russia is the third largest stakeholder. The authorized capital of this bank is $100 billion, and at present $50 billion is available. It is to take place. It is to do the infrastructure investment in the Asian region. Okay. यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें। Yes, sir. ठीक है, 2019 में आया था शायद। सर जी वापस से थोड़ा आ सकता है? हाँ जी, आ जाओ, क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जो एक बार आ चुका दोबारा भी आ सकता है। अब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी ऑन दी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ब्रिक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एसएसए क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एजेंसी। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होता है कि आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं तो उस कंट्री की जिम्मेदारी कि अपने जो बाहर से एम्प्लॉयज आए हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दे। सोशल सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी नहीं है जो हम समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी मीन्स पीएफ कटे, टैक्स बेनिफिट दे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब वाली सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब वाली सोशल सिक्योरिटी। ब्रिक्स क्या है हमने आपको बता ही दिया, कहां से शुरू हुई है, हर साल होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द ब्रिक्स बैंक, ओके, ये इंपॉर्टेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द ब्रिक्स बैंक दैट वाज स्टार्टेड विद द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। द ब्रिक्स बैंक वाज established with the Fortaleza Declaration.
it is a bank that was established by the BRICS countries, where headquarters are in Shanghai. ठीक है, AIIB के headquarters are in Beijing. New Development Bank are in Shanghai. In this bank, all the members are equal stakeholder. All the members are equal stakeholder. ठीक है, समझ में आया? बस ये ध्यान रखना, और इससे ज्यादा नहीं। इसमें क्या है, ईच पार्टिसिपेंट वन वोट, इक्वल बोर्ड मेंबर्स हैं, इक्वल वोट। AIIB में जिसके पास ज्यादा शेयर उसका ज्यादा वोटिंग वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, तो अंडरस्टूड है, ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा वोटिंग भी चाहिए। वेरी गुड। EU लीडर्स समिट हुआ था, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का समिट हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक ऐसा हाइब्रिड समिट हुआ है EU+27 फॉर्मेट में विद इंडिया। इससे पहले US के साथ हुआ था, तो इंडिया के साथ पहली बार ऐसा हुआ है। व्हाट डिड दे डिस्कस? दे डिस्कस अबाउट द trade and investment agreements. They discussed about connectivity, focusing upon people to people connectivity, coalition for a disaster resilience infrastructure. They discussed about having cooperation in the emerging technology, and they also began ठीक है, they have also provided the investment for the Pune Metro Rail project. ठीक है, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। फायदा क्या है कि इंडिया, देखो EU के रोड मैप पे इंडिया की स्पेशल प्लेस बन रही है। अगर US के साथ जैसे समिट किया वैसे इंडिया के साथ भी किया है, तो वी आर हैविंग अ स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हाट इज यूरोपियन काउंसिल? इट इज अ काउंसिल व्हिच इज हैविंग द EU मेंबर्स, एंड it is acting as the policy and political decision making body. ठीक है, policy and political decision making body। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे ऑफिसेस है। पहला यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव आर्म, एंड काउंसिल ऑफ यूरोप है। ठीक, काउंसिल ऑफ यूरोप इज फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो मीटिंग वाज विद द यूरोपियन काउंसिल, दोनों अलग अलग। स्विट्जरलैंड ने नेगोशिएशन हटा दी है कि भाई वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। स्विट्जरलैंड ने बोला ना, हम नहीं बन रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया। ठीक है, ये न्यूज में था। अब स्विट्जरलैंड किसका पार्ट है? स्विट्जरलैंड इज द पार्ट ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज नॉट विद EU। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज नॉट विद EU, इट इज बिटवीन स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे एक यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है विच इंक्लूड्स ओनली आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे प्लस EU. It is Switzerland is not a part of it, and EU consists of its special area. ठीक है, ये चीज समझिए। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज है? ये 28 दिया हुआ, 27 है। UK हट चुका है। ठीक है, 27 कंट्रीज है। शेंगन एरिया में 26 ही है, बिकॉज शेंगन एरिया UK का इंक्लूड ही नहीं था। शेंगन एरिया वो है, एक वीजा 26 कंट्रीज के मजे लो। ठीक है, इसमें लेकिन वो जरूरी कंट्रीज नहीं है जो EU का पार्ट है। इट इंक्लूड सम नॉन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ऑल्सो। शेंगन वीजा। यूरोजोन मींस करेंसी यूरो इज यूज्ड इन दिस कंट्री। ये सिर्फ 19 कंट्रीज में है। ओके, यूरोजोन मतलब सिंगल मार्केट और यूरोजोन में क्या फर्क है? यूरोजोन मतलब सिंगल करेंसी, यूरो यूज होगा, दैट इज यूरोजोन। यूरोपियन यूनियन इज सिंगल मार्केट। तो सर बेसिकली ब्रेक्सिट के बाद से करेंसी सेम नहीं है, बट फ्री सर्कुलेशन है अभी भी। नहीं, तो अब तो वो यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट नहीं है ना, और UK तो पहले भी यूरोजोन का पार्ट नहीं था। राइट, ओके सर। यूके में तो पहले से स्टर्लिंग पाउंड चलता है ना UK में। तो हाँ, यूरो नहीं एक्सेप्ट करते, मतलब करते हैं लेकिन एक्सचेंज की तरह करते हैं, फ्री करेंसी नहीं मानते उसको।
फिर एक आर्कटिक साइंस मटेरियल हुआ था. Arctic Science Material is the third time that it has taken place regarding the development in the Arctic region for the research and cooperation in the Arctic region. First happened in 2016 in USA. Second was in Germany. Okay, second was in Germany. Now India participated in this. This one, the third meeting, is organized by Iceland and Japan. Okay, Iceland and Japan. It is the first time the meeting was held in Asia. It is designed to understand the Arctic region collectively. The meeting emphasized on the constant engagement for the sustainable Arctic region. The theme was knowledge for sustainable Arctic. याद कर लीजिएगा, थीम इस ये वाला थीम आए तो इस साल का है, इसके अलावा जो आए वो इस साल का नहीं. Knowledge for sustainable Arctic. India is engaging in this region not only from today. It is engaging since 1920. There is a treaty, Svalbard Treaty. ठीक है, Svalbard is a place in Norway. Treaty उसी के basis पे थी. Now India has their stations also. First is in Norway, that is in Himadri. India also have its observatory, that is INDARC, Indian Arctic Observatory, that is in Kings Fjord in the Norway region. The research is also being conducted through the National Center for Polar and Ocean Research, COA, where they are giving their energy for the research and development in the Arctic region. ठीक है, Arctic Council के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. तो there are 8 members. India is not a member of Arctic Council. Arctic Council consists of only those countries which are within the Arctic Ocean. कौन कौन सी countries हैं? Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Switzerland, Sweden, and US. These are the 8 countries. Observer, India is an observer. It was established through the Ottawa Declaration. It was established through the Ottawa Declaration. Okay. समझ में आया? Very good. बिम्स्टेक का समिट हुआ था. मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक कितने हैं? देखिए, मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक याद करने का तरीका. इट वाज इनिशियली स्टार्टेड विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन, जहां इसके मेंबर थे बिस्टेक, BISTEC. Earlier it was called as the Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. Earlier it was called as Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand BISTEC Economic Cooperation. Then later on Myanmar, Bhutan and Nepal, they joined. Myanmar, Bhutan and नेपाल ज्वाइन. अब म्यांमार ऐड करके तो बिम्स्टेक बन गया, बहुत बढ़िया है. बाकी को कैसे ऐड करें? नाम बदलना पड़ रहा है, लेकिन बिम्स्टेक नाम भी अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम रखा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इट इज फॉर द बे ऑफ बंगाल रिम कंट्रीज, लेकिन नेपाल तो बे ऑफ बंगाल में है नहीं. ठीक है, तो याद करने के लिए इसलिए पहले कंट्रीज बताई हैं. इट इंक्लूड बे ऑफ बंगाल कंट्रीज, जिसमें मेंबर्स कितने हैं? 7. बिम्स्टेक तो याद रहेंगे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 मेंबर्स. ओके, इट इज फॉर द टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाम में सब कुछ है. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पर्पस है. ठीक है, मीटिंग हुई है रिसेंटली. ठीक है, मीटिंग हुई है, श्रीलंका ने चेयर किया है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट दैट आर गोइंग ऑन विद दिस कंट्री. ओके, अब इंडिया की जो सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, इट हैज बीन recognized as the regional customs laboratory of the World Customs Organization. The Central Revenue Control Laboratory is now recognized as a regional customs laboratory of World Customs Organization. इसलिए न्यूज में एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, not that important. डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत कुछ किया था, तो नए प्रेसिडेंट उसको बस अंडू कर रहे हैं. उसमें से एक ये भी था कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही सैंक्शंस लगा दिए. ठीक है, तो उन्होंने उनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही सैंक्शन लगा दिए थे. तो इसलिए हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहली चीज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन.
International Court of Justice is one of the 6 principal organ of UN. International Criminal Court is not a part of UN. ठीक है, ये 1946 में बना था. This was in 2002. World Court is ICJ. ठीक है, दोनों both are located in Netherlands, The Hague. International Court of Justice deals with the state-to-state dispute. International Criminal Court deals with the criminal disputes. Funding of ICJ comes from United Nations. Rest ICC comes from voluntary contribution. India is not a member of International Criminal Court. International Criminal Court may only those who are members of International Criminal Court, they can be considered as the party to this. मतलब अगर कोई member है उसी के खिलाफ केस हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता. ठीक है, very good. Up, there is a crisis going on in Mali, like any other West African country, because of the earlier dictatorship where the people established democracy and then again that democratic elected leader tried to become a dictator. This happens a lot in African nations. तो उसी को resolve करने के लिए Economic Community of West African States mediation करना चाहती है. They are attempting to mediate. तो Mali is in West Africa, ये आपको पता होना चाहिए. There is a community for West African states, ये भी आपको पता होना चाहिए. This community consists of 15 countries. Okay. Now USA has cleared to sell India P-8I patrol aircraft. This will be a patrolling aircraft. It will have long range multi-mission maritime patrol that will be manufactured by Boeing for Indian Navy. Okay. It is not for Indian Air Force, it is for Indian Navy. Okay. It is designed to protect the coastline and territorial waters. It can conduct anti-submarine warfare, intelligence, maritime patrol, surveillance and reconnaissance missions. India को ये कौन सी ट्रीटी के अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो रही है? अंडर द COMCASA. There are 3 treaties that India has signed with USA. ठीक है, फर्स्ट इज LEMOA, SISMOA and third is the treaty that is the BECA. ठीक है, 3 याद रखिएगा, LEMOA, SISMOA and BECA. SISMOA is जिसको COMCASA भी बोला जाता है. The treaty is for the exchange in the communication technologies. GISMOA is the military information agreement for the sharing of classified information. LEMOA is the exchange of logistics, that is LEMOA, and BECA is for the basic cooperation regarding the geospatial data. समझ में आया? कुछ नहीं आया? 100% निकला. 4 ट्रीटी याद रखिए. क्वेश्चन आएगा प्री में, नहीं आएगा क्या 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 किस लिए? प्री में क्वेश्चन आएगा लेमोआ, जिस्मोआ, सिस्मोआ, बेका कौन सी कंट्री के साथ है? ये आंसर है यूएस. थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं. बेका से चलते हैं. ये सारी साइन हो चुकी हैं. बेका इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, यानी कि आपकी सैटेलाइट ने कुछ डेटा इकट्ठा किया, हमारी सैटेलाइट ने कुछ डेटा इकट्ठा किया, उसको एक्सचेंज करेंगे, उसकी ट्रीटी. दिस इज बेका. ठीक है. LEMOA is logistic exchange memorandum of agreement. LEMOA is exchange of the logistics. मान लीजिए आपकी शिप कहीं पर है, वहां पर हमारा पोर्ट है उसके पास. आपकी शिप को लॉजिस्टिक्स ही हम दे देंगे, मिलिट्री शिप को. हमारी शिप कहीं पर है, आपका पोर्ट है वहां पर, आप हमें लॉजिस्टिक्स दे देंगे. दैट इज LEMOA. Okay. Then there is GISMOA. GISMOA is sharing classified information between the defense manufacturers of 2 countries. That is GISMOA. And COMCASA is communication compatibility and security arrangement, means sharing the communication related to security. That is COMCASA. ये 4 अग्रीमेंट. ठीक है. डिसीजन किसने लिया है इनको बाय करने का? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, which is the council chaired by Minister of Defense. Minister of Defense. Now US Indian agreement किया है for having an air launched unmanned air vehicle as a part of the Defense Technology and Trade Initiative. It is a part of the Defense Technology and Trade Initiative. Okay. It is a part of the Defense Technology and Trade Initiative. They will be having an agreement to have an air launched unmanned air vehicle. ठीक है.
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट किस कंट्री का है? डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट इज ऑफ विच कंट्री? यूएसए। ठीक है, न्यूज में क्यों था? बिकॉज द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स ट्विटर अकाउंट वाज सस्पेंडेड फॉर वायलेटिंग द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट. It is a part of intellectual property rights acts of the USA where they believe that the copyright should not be violated. ठीक है, Digital Millennium Copyrights Act is of USA. Is of USA. USA has a list called as Child Soldier Recruiter List. उसमें पाकिस्तान को उन्होंने ऐड कर दिया. तो Child Soldier Recruiter List में पाकिस्तान को ऐड कर दिया है, जहां पर they want to prevent the रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स. तो उसमें पाकिस्तान इज ऑल्सो रिक्रूटिंग चाइल्ड सोल्जर्स. ठीक है, एक पाइपलाइन बन रही है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी. देयर इज अ पाइपलाइन दैट इज बीइंग बिल्ट बिटवीन रशिया एंड जर्मनी दैट इज कॉल्ड एज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन. नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन. दिस विल बी अ गैस पाइपलाइन. इट विल बी अ गैस पाइपलाइन फॉर assuring or providing the एनर्जी सिक्योरिटी टू जर्मनी. पहले यूएसए ने बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं बिकॉज काटसा, याद है, बताया थोड़ी देर पहले. लेकिन अब उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, बना. बस ये है न्यूज. चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इट इज बिटवीन रशिया एंड यहाँ पे रशिया एंड जर्मनी. ठीक है, कौन सा सी बीच में पड़ रहा है? कौन से सी में से जाएगी? बाल्टिक सी. ठीक है, क्वेश्चन ही आ सकता है, बाल्टिक सी. ओके, कौन सी गल्फ में से निकल के आ रही है? गल्फ ऑफ फिनलैंड. ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड. ओके, वेरी गुड. यूएसए ने देखा कि हम अगर वॉर होता है उसके आसपास जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उनके आसपास जब शिप के आसपास कोई बॉम्ब फूटता था, माइंस एक्सप्लोड होती, उनकी शिप को बहुत इफेक्ट आता था. उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड द फुल शिप शॉक ट्रायल टेस्ट. ठीक है, किसने किया है? यूएसए ने किया है, यूएस नेवी ने किया है. बस यही है कि अगर इनके शिप के आसपास कोई एक्सप्लोजन होता है तो शिप पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए. तो फुल शिप शॉक ट्रायल टेस्ट. ओके, वेरी गुड. यूएस ने जो ट्रंप ने इमिग्रेशन लॉज बनाए थे उसको बाइडेन बोला वापस करेंगे. ठीक है, वापस करेंगे, लेकिन बाइडेन इज साइलेंट रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द H1B वीजा. रिगार्डिंग द H1B वीजा बाइडेन इज साइलेंट. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज H1B वीजा. इट इज द वीजा दैट इज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू द qualified professionals from other countries who want to work in the United States of America. ठीक है, H1B वीजा, H2B वीजा, L1 वीजा, ग्रीन कार्ड, ये पढ़ लीजिएगा. क्वाड की ग्रुपिंग है. क्वाड कंसिस्ट ऑफ विच ऑल मेंबर्स? हाँ, क्वाड कंसिस्ट ऑफ विच ऑल मेंबर्स? QUAD, क्वाड. क्वाड मतलब चार. चार में कौन कौन होगा? चाइना के काउंटर करने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज है वर्ल्ड में सबसे आगे? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान. ठीक है, ये चार है. चाइना ने धमकी दी बांग्लादेश को, अगर तुमने ज्वाइन किया तो फिर देख लेना. बस ये न्यूज है. चाइना ने धमकी दी, अगर तुमने ज्वाइन किया तो देख लेना. क्वाड कम बना था? इट वाज फॉर्म्ड इन 2007, लेकिन 2017 में इट वाज रिवाइव्ड. इट इज प्रोवाइडिंग as a platform of diplomatic consultation and coordination, and it is also aiming to advance the security and economic interest of the countries in the region. एक क्वाड का है. अब यूएस ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में रख दिया है. क्यों? यूएस ने बोला है कि 3 क्राइटेरिया होते हैं टू रिव्यू इट्स पार्टनर स्टेटस. पहला, इफ दे आर हैविंग बायलैटरल ट्रेड सरप्लस, वी हैव दैट विद यूएसए. current account surplus, we have that with USA, and persistent one-sided intervention in फॉरेस्ट मार्केट कि ये अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं. जो चाइना यूएसए ने बोला इंडिया ऐसा कर रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द ट्रेड सरप्लस एंड बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट वन-साइडेड इंटरवेंशन इंडिया इज मैनिपुलेटिंग इट्स करेंसी. ये क्वेश्चन नहीं आएगा करेंसी वॉच लिस्ट पे. ठीक है, अब अदर
इंडिया अकेली नहीं है, यूएस ने 11 कंट्रीज को मॉनिटरिंग लिस्ट पर डाला है। इसमें कौन कौन है? चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैक्सिको। तो जापान भी है, चाइना भी है, जर्मनी है, तो क्या दिक्कत है? G4 के सबको डाल दिया होगा। जैसे मान लो आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है, मान लो किसी कंट्री में ऐसा हो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोले और वो इनकम टैक्स बॉडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आपके खिलाफ यूज करने लग जाए, है ना? होता नहीं किसी कंट्री में, मान लो, लेकिन हो अगर ऐसा, तो ऐसा ही इन्होंने अपना बोला कि अच्छा हमारी करेंसी, तुम मेंबर बनोगे यूएनएससी के, तो उन्होंने चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया सबको इस लिस्ट में डाल दिया। और इन सबको डालते तो फिर शक होता, इसलिए औरों को भी डाल दिया। ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, यूएस नेवी ने इंडिया के आसपास अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो है दिखाने के लिए इट कैरिड आउट एन ऑपरेशन विच इंडिया डिड नॉट लाइक बिकॉज दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडियाज परमिशन एंड दे डिड इट विदाउट इंडियाज कंसेंट। ठीक है, ये क्या होता है? दैट वी आर दे टेक देयर शिप फ्रॉम दैट वे पासवे पैसेज एंड आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एनी ट्रबल टू दैट पैसेज और नॉट। लेकिन इंडिया has its military presence in its territorial water in Lakshadweep, so India did not like it because they should have taken India's permission. Okay, this was in news. Now USA ne bola it will come out of the Open Skies Treaty. There is a treaty that the sky is not for anyone. The similar way there is a treaty for the international waters, there is a treaty for the open sky. This is an agreement that permit each state party to conduct short notice unarmed reconnaissance flight over the others territories to collect data on military and activities. मतलब आप दूसरी कंट्री के भी ओपन स्काई में जा सकते हैं for reconnaissance. It is used as aimed at building confidence and familiarity among each other state parties. It was signed in 1992. Okay, it was signed in 1992 and 34 states are party to it. 35th Kyrgyzstan has signed it but has not ratified it. India and China are not a member. India and China not a member. तो ओपन स्काई ट्रीटी होती है, दूसरी कंट्री के ओपन स्काई यूज कर सकते हैं। ठीक है, रशिया इज अ मेंबर, यूएसए इज exiting it, India and China are not the member. Okay, इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ था, ये तो सब आपको पता ही है, आपको बॉर्डर भी पता है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, LAC कहा जाता है। एंड जो है कौन सी लाइन है? मैकडोनल्ड लाइन होती है, जॉनसन लाइन है आपकी अक्साई चीन वाले रीजन में, और मैकमेहन लाइन है आपकी अरुणाचल वाले रीजन में, तो आपको पता ही। गालवन वैली कहाँ है? इट इज ऑल्सो, यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस, है ना? पता ही है ना? गोगरा पोस्ट, ये सब ये बस पता होना चाहिए। चाइना ने साउथ एशियन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मतलब चाइना ने क्या किया कि जो यूएस जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, उनके साथ मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इनिशिएटिव फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो बांग्लादेश के थ्रू उन्होंने बोला कि इंडिया को कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए। बस ये न्यूज है। इसमें कौन कौन मेंबर नहीं है? भूटान, देखो जहां इंडिया नहीं है वहां भूटान तो होता ही नहीं है। ठीक है, वी हैव सच ग्रेट रिलेशंस विद भूटान। इसमें कौन नहीं है? भूटान नहीं है, इंडिया नहीं है और मालदीव्स नहीं है। ठीक है, भूटान नहीं है, इंडिया नहीं है, मालदीव्स नहीं है। ओके, ये थे हमारे करंट अफेयर्स फ्रॉम आई। ठीक है, आप लोग रिवाइज कीजिएगा, कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। IR को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, IR को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वी जस्ट हैव टू हैव एन ओवरव्यू। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद सोशल इश्यूज। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बताओ। सर डे आफ्टर। डे आफ्टर, सर डे आफ्टर टुमारो। फिर लेकिन हमारा सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। फ्राइडे को ली, आज वेडनेसडे है ना, सैटरडे संडे। चलो ठीक है, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। हमारा क्या बचा? सोशल इश्यूज और फिर मिसलेनियस, छोटे टॉपिक्स। बड़े में तो एक सोशल इश्यूज भी है, मिसलेनियस में भी बड़ा सोशल इश्यूज ही है बस, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्कीम वगैरह बहुत सारी रहेंगी ना उसमें, स्कीम्स बहुत सारे रहेंगे। अभी तक सोच रहे स्कीम तो कराई नहीं, तो स्कीम सारी उसी में रहेंगी मोस्टली।
ठीक है, उसको करेंगे आराम से, एक हफ्ता कोशिश करेंगे, एक हफ्ता भी लगा दें, लेकिन करेंगे आराम से। उसके बाद तो एक दिन की क्लास है ना। चलिए, विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।